اللہ لیس لائف کیسی لائف ہے؟ ایک بندہ جس کی زندگی میں اللہ ہے ہی نہیں، کیا زندگی بسر کر رہا ہے وہ؟ کتنی تنگ زندگی ہے اس کی۔ یہ جملہ بہت بھاری ہے، لیکن آؤ میرے ساتھ کسی تعلیمی ادارے میں چلتے ہیں، کسی کیفے میں جاتے ہیں، کسی تھڑے پر بیٹھتے ہیں، دیکھو لڑکوں کی ہے زندگی میں ایک منٹ بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہو تو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، آؤ۔ اور ایک میں عجیب بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، پتہ نہیں کہاں ذہن گم رہتے ہیں ان کے۔ ابھی یہ گائے آ گئی ہیں تو جناب وہ باہر ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور پورا ٹبر 3 گلیوں سمیت اس گائے کے گرد بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اس کے لیے پیدا کیا ہے؟ گائے خریدنے جا رہے ہیں، 4 دن منڈی پوری گھوم لی، ایک ایک کھونٹے کا پتہ چل گیا، گائے نہیں ملی۔ دس از ناٹ فار وٹ یو آر ہیئر ان دس ورلڈ مائی ڈیئر۔ یہ اللہ والوں کے طریقے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر چاہے تو دن رات اللہ کی یاد میں وہ کیسے بسر کر سکتا ہے۔ یاد رکھو، آپ کو صبح اٹھتے ہی خاص کوٹا ملتا ہے انرجی کا۔ جس طرح میرے پاس آئے ہیں نا، آپ میرے بچے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ 500 روپے رکھ لو، آج کے دن کا تمہارا یہ خرچہ ہے۔ اب یہ 500 جب ختم ہو جائے گا تو تمہارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ میرا بچہ ہے، اس کی کیا انداز ہونا چاہیے کہ میں 500 روپے میں سب سے اہم ترین چیز پہلے کر لوں۔ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ روٹی، پھر کیا ہے؟ کپڑا، پھر کیا ہے؟ مکان، پھر کیا ہے؟ اگر پیسے بچ گئے تو کوئی پینسل کاپی پڑھنے کے لیے، اگر پھر بچ گئے تو پھر وہ شاورما وغیرہ کھا لیتا ہے۔ ترتیب ہے نا۔ تو جب آپ صبح اٹھے ہیں نا، آپ کو انرجی کا ایک کوٹا ملا ہے کہ بھائی اتنی انرجی تیرے میں ہے، اب تو جو چاہے اس انرجی کے ساتھ کر لے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر تیرے پاس انرجی رہے گی نہیں۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایٹ دا فراگ، کہ سب سے پہلے دن میں توانا ہو، جاگے ہوئے ہو، وہ کام کر لو جو سب سے اہم ترین ہے، مشکل والا کر لو۔ سارے کام دیکھو، وہ چنو جو ایک کام کرنے سے تمہیں اتنا سکون مل جائے کہ باقی سارے کام آسان ہو جائیں۔ ابھی عید چل رہی ہے نا، عید اور حج آ رہا ہے، تو میں نے یوٹیوب کے اوپر 6 ویڈیوز سوچی۔ اب میرے ساتھ رہو، میں آپ کو ان ویڈیوز کے نام بتاتا ہوں۔ ایک ویڈیو میں نے سوچی کہ یار گائے کا بہت زیادہ ہوگا، تو گائے کے بارے میں نا کوئی نئی معلومات لے کر آتا ہوں میں اس دفعہ۔ گائے کی قربانی کیسے کرنی ہے، 7 حصے یہ تو سب کو پتہ چل ہی چکا ہے، وہ علماء ہمارے اللہ سلامت رکھے بتا ہی رہے ہیں۔ میں کوئی نئی ورائٹی لے کر آؤں گا گائے کے بارے میں، نئی چیز۔ ایک ویڈیو گائے کے بارے میں ہوگی، ایک ویڈیو میں نے کہا جی اونٹ کے بارے میں بناتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے اونٹ کو کیسا بنایا، تو اس میں تو بڑے راز ہوں گے، چلو اونٹ بھی ہو گیا۔ 20-20 منٹ کی ستھری ویڈیو، ایسی معلومات جو کسی اونٹ پالنے والے کو بھی نہیں پتا ہوں گی۔ 2 ویڈیوز ہوگی۔ تیسری ویڈیو میں نے کہا جی بڑی عید پہ گوشت اتنا کھایا جاتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے کتنا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا سبحان بھائی آپ بڑے میڈیکل کی باتیں کرتے ہیں، بندے کو گوشت دن میں کتنا کھانا چاہیے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، آپ ہنسیں گے۔ کہتے نہیں میں آپ جو کہتے ہیں مانتا ہوں، مجھے آپ بتائیں دن میں گوشت کتنا کھانا چاہیے۔ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا آپ ہنسیں گے۔ کہتا نہیں بتائیں۔ میں نے کہا امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق دن میں صرف 1 پاؤ ریڈ میٹ یعنی مٹن اور بیف 1 پاؤ کھا سکتے ہیں بس۔ واقعی وہ ہنسا۔ میں نے کہا ہنسے نا آپ، کیونکہ ہم تو گزرتے 1 پاؤ تو ویسے ہی پتہ بھی نہیں چلتا، ابھی تو چکھ رہے ہوتے ہیں 1 پاؤ میں تو چکھنا ہوتا ہے کہ کڑھائی کھچ دی ہے، ہن پتہ چل گیا تو ہن کھانا شروع کریے۔ تو بڑی عید کے اوپر نا ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ یورک ایسڈ بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ لال گوشت کھانے سے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا تیسری ویڈیو بنائیں گے یورک ایسڈ کے اوپر کہ یورک ایسڈ کس طرح بڑھتا ہے۔ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جوڑوں کے اندر کرسٹل بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں تو اس میں درد کرتا ہے بہت زیادہ، اور پتھری بن جائے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔
चौथी वीडियो मैंने कहा कि कई ऐसी निशानियां इंसान के जिस्म में होती हैं जो ख़तरनाक बीमारियों की अलामात होती हैं, उसको पता नहीं चल रहा होता, तो उस पर बना देते हैं पेट के बारे में। जैसे अगर आप खाना खाते हैं और आधे घंटे बाद आप एकदम गिर ही जाते हैं, बिल्कुल और ये सर चक्कर आ रहा है और नींद आ रही है, आधे घंटे बाद, तो आपके पेट में सख्त मसला है। अगर आप ताज़ा घर का बना हुआ वेजिटेबल सलाद और बिल्कुल घर का बना सही खाना भी खाते हैं और फिर भी आधे घंटे बाद पेट में खराबी, ब्लॉटिंग हो जाती, तो समझ लें आपके पेट के अंदर का जो बैरियर है वो टूट चुका हुआ है, अनकरीब कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप खाना खाते हैं और आधे घंटे बाद आपको फ़ौरन पखाना आ जाता है, काम ख़तरनाक है, अभी भी अंदर प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप बेहतरीन खाना कम मिकदार में भी खाएं लेकिन यहाँ गंदा गंदा सा पानी आ रहा होता है, काम ख़तरनाक है। इस तरह की मैंने कहा निशानियां कुछ बता दूं और इलाज बता दूंगा साथ। अब ये वीडियोस बनानी है मैंने। आखिरी वीडियो मैंने सोचा कि हज के बारे में क्या बनाऊं, हज की भी तो वीडियो बननी चाहिए ना, क्या बनाऊं। अब हज का जो सारा प्रोसीजर है वो तो उलमा बता रहे हैं। मैंने सोचा कि यार जो 25 लाख बंदा दुनिया पूरी से गया है और जाकर उसने खाना काबा के गिर्द घूमना है और कहना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एक आवाज पैदा होगी ना, तो इस आवाज का पैदा होना पूरी दुनिया पर, कायनात पर, उस हाजी पर इसके क्या साइंसी पहलू हैं। व्हाट आर द साइंटिफिक इंपैक्ट ऑफ तलबिया ऑन द यूनिवर्स एंड ऑन द हाजी बॉडी। देखो ना, एक मेलोडी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वेवलेंथ है, एक इर्ताश है, एक फ्रीक्वेंसी है, और फिर झुका हुआ है ऐसे करके, अल्लाह मतलब कपड़े पहने हुए हैं, तो कैसी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती होगी ना, एनर्जी की फील्ड बन जाती है। अल्लाह ने बनाई कायनात और अल्लाह ने तलबिया का कहा है, और वो साउंड वेव्स रुकती नहीं और फैलती हैं। यार एक गाना है, वो सुने कोई बंदा तो पागलों की तरह, बंदरों की तरह उछलने लगता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना कि वो गाना ऐसा होता है कि वो गाना सुन के हाय हाय गिर रहा है, तो वो गाना सुन के डांस कर रहा है। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको सुन के वो गिर जाता है, बिल्कुल मर गए, ट्रेजिक सॉन्ग। अगर गाने की फ्रीक्वेंसी इंसान की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है तो तलबिया की फ्रीक्वेंसी कितनी करती होगी? नहीं समझे बात? उस वक्त वो हाजी, उसका मुंह झुका हुआ, आंखों में आंसू, रूह की ताजगी, तो साइंस है ना पीछे, इंसान का जिस्म है। अब मुझे बताओ इस सारी वीडियो में सबसे मुश्किल वीडियो कौन सी होगी? आखिरी बात। अब इस पे मैंने जोर देने के लिए फजर के बाद, मुझे कोई नहीं पता था ये क्या होगा। मैंने कहा ये मैं 2-3 सफ़े ही लिख सकूंगा इस पे। साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड वो साउंड वेव्स है ना, अल्ट्रासाउंड सेल्स में पेनिट्रेट साउंड वेव्स कर देते हैं, फिर वो साउंड वेव्स आपके टिश्यूज़ को रीओरिजिनेट करती है और मसल्स की टोन को सेट करती है, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। मैंने कहा इस तरह की 2-4 बातें होंगी तो सुबह उठ के देखेंगे। मुझे एनर्जी सबसे ज़्यादा कब मिलती है? सुबह के वक्त, फजर के बाद मुझे ऐसी एनर्जी दी जाती है। सुभान साहब, जी सर ये एनर्जी लो, अब सारा दिन में जितनी लगा लो। कभी कभार मैं रिक्वेस्ट करके ना ज़्यादा मांग लेता हूँ कि यार आज 4 क्लिप तैयार करने तो 4 की एनर्जी दे दे वरना नहीं मिलती, क्योंकि चाय मैं पीता नहीं, कॉफ़ी का मुझे टेस्ट भी नहीं पता, भाई इसी तरह एनर्जी लेनी होती है। तो मुझे एनर्जी मिली, मैं फजर के बाद बैठा, बड़ी खामोशी होती है, दिमाग ताज़ा होता है। वो हमारे मौलवी साहब की रात भी बड़ी प्यारी करते हैं, समा बांध देते हैं, बच्चे भी सब सो रहे होते हैं, अल्लाह मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को सलामत रखे। लेकिन जब वो सो रहे होते हैं तो फिर तो अब वहाँ पर बैठकर छोटी सी लाइट जलाकर मैं पढ़ने बैठा, अल्लाह का करम हुआ 38 सफ़े लिखे मैंने 38, सिर्फ इस बात पे कि तलबिया के दौरान कायनात में क्या असर हो रहा था। What is the impact of तलबिया on this universe? यूनिफॉर्म पहन के देखो, यूनिफॉर्म पहन के अब जब भी जाएंगे आपका अंदाज सीखने वाला होगा ना। अभी ये मेरा शहजादा है, बड़े गौर से सुन रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, इसने वेस्ट कोट पहनी है। सुभान भाई किश्तों में चलते हैं वेस्ट कोट पहन के। जब ये स्कूल जाता है तो क्या पहन के जाता है? यूनिफॉर्म। तो जब आप यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे ना और वक्त पर जाएंगे, पीरियड होंगे, तब आपका सीखने वाला ज़हन होगा। साथ रहना मेरे। जब आप
यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे और पीरियड होगा, टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम होगा तो अब आपका सीखने वाला ज़हन होगा। तो हज में यही नहीं हो रहा होता, यूनिफॉर्म है, एहराम और वक्त भी है 10 ज़िलहज 9 ज़िलहज, तो वो स्कूल ही हो गया फिर लर्निंग ही हो गई ना। और जितना, ये पहला पॉइंट मेरे ज़हन में आया था। और दूसरा पॉइंट क्या आया कि जितना आपका उस्ताद से अकीदत होगी ना, ये उस्ताद, मैं आपका ज़हन बनाऊँ कि यार लाहौर आना, एक बंदा है, बड़ी डिग्री है उसके पास, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, वो ऐसा बोलता है, समा बांध देता है यार, बड़ा इल्म है उसके पास। मैं एक हफ्ता आपका ज़हन बनाता जा रहा हूँ, बंदा बड़ा फिट है, बंदा बड़ा फिट है। अब हफ्ते बाद आप उससे मिलेंगे, उसका तो हर लफ्ज़ एटम बम होगा ना। तो सोचें, बचपन से आपका खाना काबा के बारे में ज़हन नहीं बनाया जा रहा नहीं बनाया जा रहा, तस्वीरें देख रहे खाना काबा की, जाएंगे हमारा खाना काबा है, तो जब एकदम पहुंचेंगे वहां पे कमाल नहीं हो जाएगा तो ये एक तलबिया का इम्पैक्ट ये आ गया। फिर बड़ी बातें आती गई, 38 मैंने फिर पेजेस लिखे, कल मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है, इंशाल्लाह मंगल को मेरे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड होगी। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि सारे कामों में, अच्छा जब मैंने ये वीडियो बना ली ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਲਬੀਆ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ जोड़ लो तो गाय की की हैसियत रह जाती फिर, तो गाय कहाँ गई? अब गाय तो छोटी सी बात बन गई ना। उसके फौरन बाद में गाय पर आया, इस पे मुझे लगे थे 3 साढ़े 3 घंटे, गाय आधे घंटे में तैयार हो गई। एक गाय 333 आवाजें निकाल सकती है, 333। गाय उन जानवरों में से है जो अक्रॉस एनिमल भी टॉक कर सकते हैं, यानी गाय गाय से तो बात कर ले सकती है ना, लेकिन गाय चिड़िया से भी बात कर सकती है, ये उन जानवरों में से है जब आप गाय को और नजर से देखोगे, गाय उन जानवरों में से है जो बगैर गर्दन हिलाए पूरा इर्द गिर्द का 360 डिग्री पे देख लेती है। इसकी आंखें ऐसी हैं। गाय की जब आंखें बेनूर हो जाए ना, ठटक जाए, डरी हो बहुत ज्यादा, तो खुद भी डर जाना क्योंकि ज़लज़ला आने वाला है। गाय में ये सलाहियत है। 5 पेट होते हैं इसके, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबूमेसम। खाना खाती है 5 पेटों से गुजरता है, बैठ के जुगाली करती है। ऊँट की और बातें वो बताना शुरू करूंगा तो यहाँ बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। ऊँट थोड़ा दूध देता है, 6 लीटर देता है, गाय 24 लीटर देती है। ये मैं देख के हैरान रह गया, इतना बड़ा ऊँट है।